تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ نلاکنڈا پولیس نے جمعرات کو ایک چیریٹی فاؤنڈیشن VRU کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے، جس نے مبینہ طور پر لوگوں کو یہ کہہ کر لالچ دیا کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کا نصف ادا کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ فاؤنڈیشن، جو 2019 میں ایڈکمنٹ سے شروع ہوئی تھی، انہیں دھوکہ دیا اور ان کے 40 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ نلاکنڈا پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر موگیلیچر لاروی نے کہا کہ متعدد متاثرین پولیس اسٹیشن پہنچے اور کہا کہ فاؤنڈیشن نے وبائی امراض سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی فیس بھی ادا کی، لیکن تقریباً 70 لوگوں کی رقم لے کر بھاگ گئے۔ متاثرین نے مزید کہا کہ جب انہوں نے فاؤنڈیشن کے حکام سے فیس کی ادائیگی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے چیک دیے جو باؤنس ہو گئے۔ NSE فراڈ کیس میں تازہ ترین پیش رفت میں مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چنئی سے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے سابق چیف اسٹریٹجک ایڈوائزر آنند سبرامنیم کو گرفتار کیا ہے۔ ایک ذریعے نے IANS کو بتایا کہ اسے متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی تحقیقات ایجنسی ان کا ریمانڈ طلب کرے گی۔ حال ہی میں چنئی میں مسلسل 3 دن تک ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، لیکن وہ پوری پوچھ گچھ کے دوران غافل رہا، ذرائع نے بتایا۔ سبرامنیم کو رام کرشنا کے ذریعے NSE لایا گیا تھا اور مبینہ طور پر ان کے پاس اس ای میل ID تک رسائی تھی جس پر یوگی کو ای میل بھیجے گئے تھے، جن کے ساتھ خفیہ معلومات کا اشتراک کیا گیا تھا۔ CBI نے حال ہی میں SEBI دفتر پر چھاپہ مارا اور ڈیجیٹل دستاویزات سمیت کچھ مجرمانہ دستاویزات برآمد کیے۔ وزیر اعظم مودی نے یوکرین میں جاری تنازع کے درمیان روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور یوکرین میں روس کے ذریعے تشدد کو فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ روس اور نیٹو کے درمیان اختلافات کو ایماندارانہ اور مخلص بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ PM مودی نے اپنی بات چیت کے دوران روسی صدر کو یوکرین میں ہندوستان کے شہریوں بالخصوص طلباء کی حفاظت سے متعلق ہندوستان کی تشویش کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ملک ان کے محفوظ اخراج اور ہندوستان واپسی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ PM مودی اور پوتن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت 24 فروری 2022 کے بعد ہوئی ہے، جب روسی صدر نے پڑوسی ملک پر حملہ کرنے کے مقصد سے یوکرین میں فوجی آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ شکن بترا کی حالیہ ریلیز گہرائیاں میں پہلی بار سدھانت چترویدی اور دیپیکا پڈوکون ایک ساتھ نظر آئے۔ ایک سرکردہ ڈپلوئیڈ کے ساتھ اپنی حالیہ بات چیت میں سدھانت نے شیئر کیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھی اداکار سے پیار تھا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ جب وہ پہلی بار اداکارہ سے ملا تو وہ شرمانا کیسے نہیں روک سکا۔ سدھانت نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا، میرے چھوٹے بھائی کو اس سے پیار تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری فلم کی شوٹنگ کے بعد ایک دن اس نے اس سے ملاقات کی تھی اور وہ شرما رہا تھا۔ وہ 3 یا 4 سال کا ہوگا جب ہم نے اوم شانتی اوم دیکھا۔ وہ 21 فروری کو 18 سال کا ہو گیا تاکہ اب وہ گہرائیاں دیکھ سکے۔ یہ میری طرف سے اس کی سالگرہ کا تحفہ ہے۔ بالی ووڈ کی سپر اسٹار انوشکا شرما نے ان قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا کہ آیا انہوں نے اپنی فلم چکرا ایکسپریس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس نے اپنی تیاری کے عمل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر دکھایا کہ یہ مشہور ہندوستانی فاسٹ بالر جھولن گوسوامی کی طرح بالنگ کرنا سیکھ کر ان کی جلد میں شامل ہو رہی ہے۔ انوشکا نے نیٹ پر اپنی بالنگ کی تصویر پوسٹ کی اور اس کا عنوان دیا چکرا ایکسپریس، جو ہندوستان کی سب سے زیادہ سجی ہوئی خواتین کرکٹر جھولن کی زندگی اور اوقات سے متاثر ہے۔ بین الاقوامی کیریئر میں کسی خاتون کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا عالمی ریکارڈ جھولن کے پاس ہے۔ BJP مہا وکاس اگھاڑی MVA حکومت کے خلاف 22 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ ریاست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو پیش کرے گی، جس میں ریاست میں امن و امان کی مبینہ خرابی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جمعے کو انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے مہاراشٹر BJP کے سربراہ چندرکانت پاٹل نے بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ریاست کی موجودہ صورتحال صدر راج نافذ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پاٹل نے کہا، میں نے 22 صفحات کا تفصیلی نوٹ تیار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی حکومت کس طرح بدعنوانی سے لڑنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کے اپنے وزیر داغدار ہیں، امن و امان کی مکمل خرابی ہے۔ مہاراشٹر میں صدر راج کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ گورنر کا اختیار ہے، اسے صدر کو
एक रिपोर्ट भेजनी है। पाटिल ने कहा, सवाल ये कि आखिरकार वज़रा नवाब मलिक, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी और अमन व अमान की खराबी से मुताल्लिक पेश रफ्त, क्या ये सदर राज का मामला नहीं है? ये सब हो जाने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में सदर राज नहीं लगेगा? सीनियर बीजेपी लीडर क्रेट सोमिया ने कहा कि उन्होंने एमवीए की नुमाइंदगी करने वाले 12 दागदार लीडरों की फहरिस्त मुर्तब की है। उन्होंने कहा, मैंने अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए दस्तावेज़ात के साथ हर मामले पर मरकज़ को लिखा है। इससे कबल जुमे को आज़ाद एमएलए रवि राणा ने कहा कि महाराष्ट्र वाज़ेह तौर पर सदर राज की तरफ बढ़ रहा है। मखलूत हुकूमत में फूट है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सदर राज महाराष्ट्र में अगला और फितरी मरहला होगा, उन्होंने कहा। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की दौर में काबीना के 3 वज़रा को तनाज़ात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा है। काबीना के वज़ीर नवाब मलिक को बुध के रोज़ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला और एनसीपी लीडर अनिल देशमुख को होटलों, बार्स और रेस्टोरेंटों से फंड्स इकट्ठा करने के लिए पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात के बाद गुज़िश्ता साल इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इसने मुबैना तौर पर माहाना 100 करोड़ रुपए का बदफ मुकर्रर किया था। देशमुख और पार्टी ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया है। ईडी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल अदालती हिरासत में है। शिवसेना के वज़ीर संजय राठौड़ ने गुज़िश्ता साल 23 साल टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के बाद एक तनाज़े में फंसने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। महकमा इनकम टैक्स ने टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में जुमे को मुंबई में शिवसेना कॉरपोरेटर यशवंत जाधव के घर की तलाशी ली। हुक्काम ने बताया, उन्होंने महकमा टैक्स के अफसरान की एक टीम सुबह सवेरे से जाधव के खिलाफ छापे मार रही है, जो बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनकी बीवी यामिनी जाधव बाइकला सीट से पार्टी एमएलए है। अहदेदारों ने बताया कि टीम जाधव की बाइकला रिहाइश गाह पर है, जो मुल्क के सबसे अमीर शहरी अदारे की स्टैंडिंग कमेटी की सदारत करते हैं। इनके इंतखाबी हल्फनामे में मुबैना तौर पर असासों की रिपोर्टिंग के हवाले से जाधव इस कमेटी के सरबराह हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के अखराजात का एक बड़ा हिस्सा देखती है। IT डिपार्टमेंट की कार्रवाई शहरी बॉडी के इंतखाबात से कुछ हफ्ते पहले आती है। ये छापे महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुबैना मामले में गिरफ्तारी के करीब आते हैं। शिवसेना और एनसीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि महाराष्ट्र हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से मरकज़ी एजेंसियों के जरिए अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने इस तरह के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा और रियासती वज़ीर नवाब मलिक को जुम्मे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के दफ्तर से तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया। मुल्क को दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 3 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। इस मामले के सिलसिले में मुंबई की एक अदालत ने इसे 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। कबल अज़ीं ईडी ने अदालत से एनसीपी लीडर की 14 दिन की तहवील मांगी थी। इसे बुध को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ज़राए के मुताबिक मलिक पूछगछ के दौरान ताउन नहीं कर रहे थे। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मलिक ने कहा कि वो खौफज़दा नहीं है और लड़ेंगे और जीतेंगे। इस महीने के शुरू में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में मुंबई में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की रिहाइशगाह पर छापे मारे थे। बाखबर ज़राए ने मंगल को बताया कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड से वापस्ता लोगों से जुड़े कई मुकामात पर ईडी के जरिए तलाशी ली गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी रियासती वजीर के इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रही है, लेकिन महाविकास एमवीए जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, हुकूमत ने नवाब मलिक के इस्तीफ़ा के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। हाईवे के विलेपार्ले सांता क्रूज हिस्से पर एक हादसे के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी ट्रैफिक देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि राम मंदिर की तामीर इस बार अयोध्या में इंतखाबी मसाइल में से एक की तरफ धकेल दी गई है, क्योंकि मुकाबला करने वाली जमातें तरक्की के मौज़ूआत उठा रही हैं और जीत के लिए ज़ात पात के हिसाब पर भी इन्हिसार कर रही हैं। बीजेपी, जिसके लिए मंदिर के शहर ने अपना हिंदुत्व
तख्ता तेज कर दिया है। मौजूदा रियासती इंतखाबात में खास तौर पर समाजवादी पार्टी एसपी की तरफ से एक चैलेंज का सामना है। 10 उम्मीदवारों के साथ अयोध्या असेंबली हल्के में 27 फरवरी को 5वें मरहले में वोट डालने जाएंगे। ये वाज़ेह होने के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने मौजूदा एमएलए प्रकाश गुप्ता पर एतमाद जाहिर किया, जबकि एसपी ने साबिक वजीर तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को मैदान में उतारा है। पीएसपी, कांग्रेस और एएपी ने भी अयोध्या में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस तरह ये एक कसीर उलझती मुकाबला है। ये अयोध्या असेंबली हल्के में करीबी मुकाबला होने जा रहा है। जहां तक राम मंदिर का मसला है, बीजेपी इब्तिदा में इस इलेक्शन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तीसरे मरहले के बाद ही ये मसला सर उठाने लगा। इंतखाबात के बारे में हनुमानगढ़ी मंदिर के मोहनित राजू दास ने पीटीआई को बताया। उन्होंने कहा कि जहां गरीबों में राशन की तकसीम से देही इलाकों में लोगों को फ़ायदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई लीडरों का ख्याल था कि वो सिर्फ मोदी और आदित्यनाथ की इसनाद के साथ ही काफ़ी वोट हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोगों के साथ घुल मिलना और इनसे जुड़ना नहीं चाहते थे। अगर आदित्यनाथ अयोध्या से इलेक्शन लड़ते तो क्या मंजर मुख्तलिफ होता। मोनित ने कहा, बीजेपी की कोई मुखालिफत नहीं है, सिर्फ उम्मीदवार की मुखालिफत थी। एसपी की उम्मीदवार पवन पांडे ने पीटीआई से कहा, भगवान राम और राम मंदिर बीजेपी की जागीर नहीं है। प्रभु श्री राम हम सबके हैं। जब बीजेपी का वजूद नहीं था तब भी भगवान राम ने किया था। ये पूछे जाने पर क्या आदित्यनाथ के अयोध्या सीट से ना लड़ने का फैसला करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। पांडे ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार नामजद किया जाए। अयोध्या से लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर पांडे ने 2012 के असेंबली इंतखाबात में भगवा पार्टी के मुकामी दियो और अयोध्या से मौजूदा एमपी को शिकस्त दी थी। ताहम वो 2017 में गुप्ता से हार गए थे। पांडे ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी किसानों का इस्तेहसाल करने, ताजिरों को हरासा करने में मुलव्विस है और अयोध्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी टैक्स में नुमायां इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हम इसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि गाय पनाह गाहों में मौजूद गाय मुबैना तौर पर चारे और पानी की कमी की वजह से मर गई हैं। वो बीजेपी राम भगत, भगवान राम के भगत होने का दावा करते हैं, लेकिन आदित्यनाथ और इनकी हुकूमत गायों के कातिल हैं। बीजेपी के उम्मीदवार गुप्ता से जब लोगों के एक तबके से इनकी उम्मीदवारी पर नाराज़गी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप सियासत में हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते। मैं अपने ख़ानदान को खुश नहीं कर सका, ताहम मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के लिए काम करना लोगों ने किया है और तरक्की हुई है। योगी ने अयोध्या में बहुत तरक्की की है। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहले मिले।